خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آج صبح تمام حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے یہ شرف بخشا کہ میں زمین پر رہ کر انجیل کا کام کر سکوں۔ اس کے بعد پیارے بھائی پاسٹر عمران فضل کا اور اپنی پیاری بہن سسٹر میوش عمران کا جس نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، آج صبح یہ موقع مجھے دستیاب کیا کہ میں انجیل کی منادی آپ کے درمیان کر سکوں۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج خدا اپنے بچوں کے ساتھ کلام کرے گا، بتیری جانیں برکت پائیں گی۔ جتنے لوگ اس وقت فضل ٹیلی ویژن پر بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں، آج بتیری زندگیوں کے لیے یہ کلام باعث برکت ٹھہرے گا، آمین۔ تو آئیے، جن کے پاس کتاب مقدس ہے، پرانے عہد نامہ میں سے یشوع کی کتاب جسے ہم یشوع بھی کہتے ہیں، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کی تلاوت میں اپنے لیے اور آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے، جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ضرور اس حوالے کو میرے ساتھ دیکھیں۔ 8ویں آیت پر آج صبح ہم غور کریں گے۔ پاک کلام میں یوں رقم ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ کلام کی آیت جو آج صبح میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اس وقت خدا کلام کر رہا ہے جب خدا کا بندہ موسیٰ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، اور اس کے بعد خدا نے یشوع کو تیار کیا تاکہ بنی اسرائیل قوم کی صدارت کرے، اس کی قیادت کرے۔ یشوع اتنا ٹیلنٹر نہیں تھا، وہ خوف زدہ ہو گیا کہ اتنی بڑی بھیڑ، اتنے بڑے اجتماع، اتنی بڑی رعایا کی میں قیادت کس طرح کر سکتا ہوں؟ لیکن خدا اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو آج بھی حوصلہ دیتا ہے، آج بھی سنبھالتا ہے اور آج بھی کلام کرتا ہے۔ اور خدا نے یشوع کے ساتھ کلام کیا کہ اے یشوع، تو خوب کامیاب اس وقت ہوگا جب یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے گی۔ اس سے پہلے پڑھیں تو ان آیات میں لکھا ہے، خدا نے کہا کہ میں تو اس سے دستبردار نہ ہوں گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا اور تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ خدا اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تو مضبوط ہو جا، تو دلیر ہو جا، تو حوصلہ رکھ، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور اس کے بعد خدا نے یہ کلام کیا کہ یہ قوانین کی کتاب، یہ میرے حکم جس میں درج کیے گئے ہیں، یہ تیرے منہ سے جب نہیں ہٹے گا کلام، تو تب تو خوب کامیاب ہوگا، تب تو فاتح ہوگا، تب تو ابلیس پر غالب آئے گا، تب تو مشکلاتوں کا سامنا کرے گا جب تو اس کلام کو بولے گا۔ شریعت کی کتاب کے ہٹنے سے مراد یہ ہے
کہ تیرے منہ سے نہ ہٹے. یعنی جب تیرے سامنے کوئی مشکل یا آزمائش آتی ہے تو کلام کو بولنا, تو اس کے ساتھ کلام کرنا, تو تیرے سامنے سے آزمائش جائے گی, تیرے سامنے سے مشکل جائے گی. اور یشوع نے اس کلام کو اپنے دل میں رکھا, اور اس کے بعد لکھا ہے کہ دن اور رات اسی پر تیرا کیا رہے, دھیان رہے. اور کسی نے خوب تفسیر کی ہے, ایک تھیولوجین ایک تفسیر اس کی یوں کرتا ہے, دن سے مراد تیرے اچھے حالات, اور رات سے مراد یہ ہے رات کو تو انسان سوتا ہے. اور لکھا ہے کہ دن اور رات اسی پر تیرا دھیان رہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب تیرے اچھے حالات ہوں اس وقت بھی تیرا دھیان جو ہے یہ خدا کے کلام پر لگا رہے. جب حالات زندگی میں برے آ جائیں, آزمائشیں آ جائیں, تب بھی تیرا دھیان جو ہے اس شریعت کی کتاب پر لگا رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ اچھے دن آئے تو خدا کی پرستش کرے, تو کیا کہہ لے کہ خوب اس کے نام کو جلال دے, برے دن آئے تو اس کے بعد تو خدا کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے. اس سے مراد یہ ہے یشوع کو خدا نے کہا کہ دن اور رات تیرے حالات اچھے ہوں, تیرے حالات برے ہوں, تجھ پر آزمائش آئے, تجھ پر مشکل آئے, اور یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. تو کلام کو بولنا, تو کلام کرنا, تو آزمائش جاتی رہے گی, مشکلاتیں جاتی رہیں گی جب کلام تیرے اندر ذخیرہ ہوگا. ایوب بھی کہتا ہے کہ اے خداوند, میں نے اپنی ضروری خوراک سے زیادہ جو روٹی میں کھاتا ہوں, یعنی اس سے بھی زیادہ میں نے تیرے کلام کو اپنے اندر سٹاک کیا ہوا ہے, ذخیرہ کیا ہوا ہے. اور اس پر بڑی مشکل آئی, اس کے بچے مر گئے, حالات خراب ہو گئے, دولت جاتی رہے, بہت جو شاگرد جو دوست احباب اس کے مخالف ہو گئے, بری بری باتیں کہنے لگے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کہتا ہے ہر چیز کے لیے اسی نے دیا اور اسی نے لیا, اور اسی کا نام کیا ہے, مبارک ہے. زمین پر رہتے ہوئے ہر انسان کے اوپر حالات اچھے بھی آتے ہیں, حالات برے بھی آتے ہیں, اور یہ آتے رہیں گے. بائبل کہتی ہے کہ جب تک ہم گو ایماندار ہیں یا غیر ایماندار, حالات اچھے بھی آتے رہیں گے اور برے بھی آتے رہیں گے. یہ مد و جزر اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اس فانی جہاں پر ہم سانس لے رہے ہیں. اس لیے یشوع سے خدا نے کہا تھا کہ یہ شریعت کی جو کتاب ہے یہ تیرے منہ سے نہیں ہٹنی چاہیے. آج بھی اگر کوئی شخص اس کلام کو اپنے اندر نوش کرتا لیتا ہے اور جب مشکل آتی ہے تو وہ جب کلام کرتا ہے تو مشکل جاتی رہتی ہے. اور ہم مسیح کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جب انسانی بدن میں آئے اور آزمائش ہمارے مسیحا پر بھی آئی, اور زمانے والے نے کیا کہا تھا, اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے, کیا کہا, اگر تو خدا کا بیٹا ہے. اب یسوع ہمارا چرواہا, ہمارا پاسبان, ہمارا لیڈر, اگر آزمائش اس پر آ سکتی ہے تو ہم پر بھی آزمائشیں آئے گی. اس لیے ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے, ہر حالات میں اپنے خدا کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. آزمانے والے نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر کو کہہ روٹیاں بن جائے. اور یسوع کے منہ کے اندر خدا کا کلام تھا. پھر اس نے بولا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا
बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। उसके मुंह के अंदर कलाम था, अगर कलाम ना होता तो मसीह खुदावन फतह ना पाता। कलाम किया, इसीलिए लिखा है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। जब भी मुश्किल आए तो हमें कलाम करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, ताकि मुश्किल आजमाइश हमारी जिंदगी से जाती रहे। उसके बाद हैकल के किंगरे पर हम देखते हैं मसीह खुदावंद को अबलीस ले जाता है और कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत कलाम में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे और तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगेगी। तो खुदावंद मसीह ने क्या कहा? आमीन। यीशु ने कलाम किया, कलाम बोला कि यह भी लिखा है कि पास तू अपने खुदावंद खुदा की आजमाइश ना कर। इसलिए अबलीस पर उसने फतह पाई। और तीसरी आजमाइश फिर हम देखते हैं कि वो उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है। फिर आजमाने वाला कहता है, उस वक्त क्या कहता है? दुनिया की सारी शानो शौकत दिखाकर कहता है, अगर तू मुझे सिजदा करेगा तो ये सारी क्या कहनी चीजें, हर चीज शानो शौकत मैं तुझे दे दूंगा। मसीह खुदावन ने क्या कहा? लिखा है कि बस खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, उसे सिजदा कर। इसलिए जब भी आजमाइश आती है हम क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि कलाम अंदर नहीं होता। उसके बाद हालात के थपेड़े लगते हैं और मुश्किलातें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, हम उसका सामना नहीं कर पाते। जब कलाम अंदर होगा तो बोलेंगे, कलाम करेंगे तो हम जिंदगी पाएंगे, आजमाइशों पर गालिब आएंगे। इसीलिए कहा गया है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, और बल्कि दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान रहे। और यीशु मसीह हम देखते हैं तो बदन में है और उसके अंदर कलाम था। लाजर की मौत पर हम देखते हैं कब्र पर यीशु मसीह चले जाते हैं, लाजर को देखते हैं कब्र के अंदर उसे रखा गया और यीशु मसीह है बदन में। और खुदावंद मसीह ने वहां पर लाजर को अंदर जाकर नहीं कहा, ऐ लाजर तू खड़ा हो जा, हाथ नहीं लगाया। यीशु मसीह है बदन के अंदर है, लेकिन वो कलाम से भरा हुआ है और लाजर के साथ यीशु मसीह बोलता है, कलाम करता है। यीशु ने कहा, ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा। कलाम उस कब्र के अंदर जाता है और लाजर जिसकी आंखें बंद, जिसके बदन में जान नहीं, वो हरकत करना शुरू हो जाता है। क्योंकि कलाम के सबब से अगर आज भी अगर कोई रूहानी तौर पर मुर्दा है, कलाम को अनोश करता है तो खुदा उसे जिंदा कर देता है। इसलिए कहा गया है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी का तुझे ध्यान रहे। ध्यान से अगर असली मतन को देखा जाए, इसका मतलब है यगाली करना। जिस तरह एक जानवर चारा खाता है, जिसे हम अपनी जबान में पट्ठे कहते हैं, वो चारा खाता है, अंदर लेकर जाता, बाहर लेकर आता, उसको चिचता रहता है। इस तरह चित जाता है जब तक उसकी बॉडी में वो खुराक मिल नहीं जाती, उसके खून में नहीं चली जाती, वो उसको इस तरह चबाता रहता है। इस तरह कहा गया है कि ऐ ईमानदारों, ऐ लीडरों, कलाम को इस तरह नोश कीजिए कि आपकी रग रग के अंदर, आपके खून के अंदर कलाम समाया हो। जब आंधी, तूफान
मुश्किलातें आती हैं तो आप भी कलाम कर सकें। ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। बाज़ दफे समटाइम हम बाइबल को थोड़ा सा जान लेते हैं तो हम सोचते हैं हम बाइबल के हीरो हैं। एक पादरी साहब का शागिर्द था, उसने अपने शागिर्द से कहा कुछ समझाने के लिए कि बेटा आप इस तरह करें, ये तफसीर गलत है, आप इस तरह करें, इस तरह से पढ़ा करें। वो कहने लगा पादरी साहब अब तो वक्त इस तरह से आ पहुंचा है, मैं इतनी स्टडी करता हूं पुराना अहदनामा और नए अहदनामे से, यहां तक कि मैं इसके अंदर से गुजर चुका हूं। उसने कहा इसीलिए तुझे कुछ मालूम नहीं, क्योंकि तू इस पुराने और नए अहदनामे के अंदर से गुजरा है, लेकिन ये कलाम तेरे अंदर से नहीं गुजरा। अगर कलाम तेरे अंदर से गुजर जाए तो तब तुझे पता चलेगा कलाम की कुदरत को, क्योंकि लिखा है कि ये कलाम इंसान के बंद बंद और गुदे गुदे से जुदा होकर गुजर जाता है। इसलिए इस तरह इसे अनोश करने की जरूरत है कि जब भी मुश्किल आए, जब भी आजमाइश आए और हम इस पर फतह पा सकें। एक और आखिरी मिसाल देकर मैं खत्म करना चाहता हूं। ये मिसाल मेरे भाई ने सुना रहा था मुझे, वो भी पादरी साहब हैं, और उसने कहा क्रिसमस के मौका पर एक फैमिली के घर में शुक्रगुजारी की इबादत, पादरी साहब वहां पर जाते हैं और वो बहुत क्या कह ले खाते पीते थे, रुपया पैसा सब कुछ था उनके पास। जब उनके घर में बैठे, पंखा लगा, टेबल पर पैसे पड़े हुए थे, एक छोटा बच्चा कमरे में था, पादरी साहब भी अंदर थे और पैसे उड़ रहे थे, और उसने पकड़कर बाइबल में रख दिए। पादरी साहब ने दुआ की, सारा कुछ करके चले गए और उन्होंने देखा इधर उधर पैसे गायब। अब पादरी साहब को उन्होंने पूछा नहीं कि इधर तो हमारी रकम पड़ी थी, पैसे पड़े हुए थे। पादरी साहब चले गए, आपस में घर में मीटिंग हुई, पादरी के खिलाफ बातें शुरू हो गई। वो क्या कह ले परेशान कि पास्टर होकर ये कैसा काम करता है, चोरी करना पादरी का काम नहीं, पादरी का तो काम है चोर को समझाए कि ये गलत बात है। फिर आपस में डिसाइड करके और चर्च भी ना जाना, पादरी साहब विजिट करते, उस तरह उसे वेलकम भी ना करना, वो दुआ करके चला जाता। अगले साल फिर शुक्रगुजारी वो करवाते थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया बास घर के लोग कहें वो पादरी को नहीं बुलाना, हम दूसरे मोहल्ले के पादरी को बुला लें। फिर ज्यादा लोगों ने जो घर में कहा चलो कोई नहीं, बड़ी देर से हमारे घर में आता है, उसे ही बुला लेते हैं। और जब उसको बुलाया शुक्रगुजारी की इबादत पर, तो पादरी साहब ने कहा बैठो पास, ये वो बैठ भी नहीं रहे थे, अंदर से अफसुर्दा थे। तो उन्होंने कहा आप चर्च नहीं आते। उनकी एक बाजी ने बीच में से बात कर दी, उसने कहा है तो तुसी खुदा दे खादम जे, लेकिन आज हकीकत तुझे आपको बता देते हैं। पिछले साल जब आए थे हमारी कुछ रकम पड़ी थी अंदर, तो हम आपको बता नहीं रहे थे, इसलिए हम आपसे बड़े डिसार्ड हैं। पादरी साहब परेशान हो गया, बैठा रहा। पादरी साहब ने कहा आप, पादरी साहब के आंसू जारी हो गए। उसने पकड़कर उसने कहा मैंने तो बाइबल में रखे थे, और बाइबल को पकड़ा तो पैसे उसके अंदर ही थे। पादरी साहब रोना शुरू हो गया, आंसू बहाना शुरू हो गया, और घर वालों ने वो भी परेशान, हौसला देने लगे भाई साहब कोई बात नहीं, ये गलती हो जाती है हमसे। वो कहता मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आपने मुझे चोर कहा, आपने मुझे चोर कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि 1 साल हो गया है आपने बाइबल को हाथ तक नहीं लगाया, बाइबल को पढ़ा नहीं। मेरे इसलिए आंसू निकल रहे हैं कि आप बाइबल से इतने कोसों दूर हैं, इसलिए मेरे आंसू निकल रहे हैं। चोर की बात तो नहीं, खादमीन को तो चोर भी कहा जाता है और बुरा भला कहा जाता है, पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है। इसलिए आंसू जारी हैं कि आप खुदा के कलाम से कोसों दूर हैं। तो आज जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं,
अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आजमाइश पर फतह पाना चाहते हैं, मुश्किलातों पर फतह पाना चाहते हैं, और ये शरीयत की किताब को अपने अंदर जगह दीजिए। जब मुश्किल आए तो आप उस पर फतह पा सकते हैं। आज हमारा ट्रेंड ये है, बड़े लोगों को मैंने देखा है चर्चिस में जाकर, पादरी साहब कहीं से बाइबल मिले तो हमें भी एक दे देना, हमारे घर में बाइबल नहीं है। अगर देखा जाए तो मोबाइल छोटा है, तो मोबाइल 50,000 का भी लेना पड़े तो इंस्टॉलमेंट पे हम ले लेते हैं। एलईडी छोटी है, उसे बड़ा करने के लिए हम पैसे उठा लेते हैं। फ्रिज घर में नहीं, उसके लिए पैसों का अरेंज करते हैं। और एक बाइबल के लिए हम दूसरों के लिए सहारा बनने की कोशिश नहीं करते। उनको कहते हैं अगर मिल जाए मुफ्त तो दे देना। यह है भूख प्यास, क्योंकि तड़प नहीं, क्योंकि अंदर वो खुदा की मोहब्बत नहीं, कलाम को अनोश करने की वो ताकत, वो जुर्रत नहीं, दिल खालिस नहीं। इसलिए चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बाइबल मुकद्दस को खरीदना चाहिए, खुद जाकर जहां से बाइबल मिलती है। मोबाइल लेने के लिए तो हम अपने माँ बाप को तंग कर देते हैं, बहन भाइयों को तंग कर देते हैं, और घर की कोई चीज नहीं ना, हम फौरन इंतजाम सारी फैमिली करते हैं। लेकिन बाइबल के लिए आज भी लोगों को कहते हैं, पादरी साहबान को, चाहे 10 साल भी गुजर जाए, बाइबल घर में नहीं है, कहीं से मिले तो हमें दे देना। यह है बाइबल की कदर। याद रखिए, इसीलिए वो लोग जो इस तरह करते हैं वो आजमाइश का सामना भी नहीं कर पाते, वो मुश्किलातों का सामना भी नहीं कर पाते, वो कहीं और चले जाते हैं और दर पर जाकर सजदा करना शुरू कर देते हैं। यीशु के अंदर कलाम था और उसने कहा, ऐ शैतान, लिखा है कि पास खुदावन अपने खुदा को सजदा कर। इसलिए अपने बच्चों को खुद ले जाकर जहां से बाइबल मिलती है खरीद कर दे। मेरा बेटा 4 साल का है, 1 साल की उसकी बर्थडे हुई, मैंने स्पेशल यहां से बाइबल खरीद कर उसको गिफ्ट के तौर पर दी है। अब वो हमारी सेफ अलमारी में पड़ी हुई है कि जब ये जवान होगा तो इसे पता चलेगा मेरे बाप ने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट खुदा का कलाम किया है। तो इसलिए 3 साल पहले ही मैंने उसको बाइबल गिफ्ट कर दी थी कि ये बड़ा होकर इस कलाम को नोश करेगा, इस कलाम को पढ़ेगा, इस कलाम को क्या करे कि अपने अंदर लेगा और दूसरों के लिए ये बरकत का सबब बनेगा। मुझे पता है अगर उसने बाइबल ना पढ़ी, कलाम को ना सुना, अनोश ना किया, वो मुश्किलातों से घबराएगा, वो आजमाइशों से घबराएगा। इसलिए बाइबल पढ़ने वाला हालात पर गालिब आता है, मुश्किलातों पर गालिब आता है, आजमाइश पर गालिब आता है। टाइम शॉर्ट है, आखिरी बात मेरे ज़हन में एक आ गई है बाइबल के ताल्लुक से। एक मेरे उस्ताद थे, उसको एक आदमी ने कहा, पादरी साहब जहां पर भी आप जाते हैं बाइबल पकड़ते हैं, मैंने देखा है हॉस्पिटल में जाएं तो बाइबल आपने उठाई होती है, स्कूल में जाएं तो बाइबल आपने उठाई, किसी कॉलेज में जाएं तो बाइबल आपने उठाई, किसी काम पर के लिए जाएं तो बाइबल आपने उठाई होती है, अगर आप शादी पर जाएं तो वहां पर बाइबल आपने उठाई। ये क्या है? उसने कहा, ऐ मेरे भाई तू गलत कह रहा है, तुझे शायद नहीं पता, बाइबल को मैंने नहीं उठाया, बाइबल ने मुझे उठाया है। वो कभी मुझे अमेरिका ले जाती है, कभी कनाडा ले जाती है, कभी इटली ले जाती है, कभी यूरोप की सैर करवाती है। इस बाइबल ने असल में मुझे उठाया हुआ है, इसलिए दुनिया के अंदर मैं फिरता हूं। इसलिए बाइबल को अहमियत दीजिए। ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात, हालात अच्छे हों हालात बुरे हों, इसी पर तेरा ध्यान रहेगा तो तू खूब कामयाब होगा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को खुदा की हजूरी में झुकाएं। जितने लोग
इस वक्त चर्च में मौजूद हैं, हमें वॉच कर रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, बुजुर्गों, खुदा का कलाम सच्चा है, ला तब्दील है, लामहदूद है। दुनिया की चीजें अपनी जिंदगी की आसाइश के लिए आप हर चीज खरीदने के लिए तैयार होते हैं, बड़ी जुस्तजू करते, बड़ी तगोदो करते, अपने लिए खुदा का कलाम खरीद ले और उसे पढ़, उसे अनोश कर। तेरी जिंदगी बेतरतीब जो है एक तरतीब में आ जाएगी और रूहानी तौर पर तू जीने का हुनर सीख जाएगा। इस कलाम को अपने दिल में जगा दे। इसीलिए यशवा को कहा है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। अगर तू घर में सदारत करता है, स्कूल में सदारत करता है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सदारत करता है, तू किसी चर्च की सदारत करता है, तू किसी चीज का भी लीडर है, तो तेरे लिए जरूरी है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। जब तुझे मुश्किल पेश आए तो कलाम बोल, कलाम कर। ये तेरा सहारा बनेगा, ये तेरी सिपर बनेगा, ये तेरी ताकत बनेगा। तू हर मुश्किल पर, हर आजमाइश पर उस वक्त गालिब आएगा जब कलाम तेरे अंदर होगा, तो तू खूब कामयाब होगा। सारे दुआ करेंगे।